Hello guys, welcome to my channel. Here today we are going to discuss about the topic that is nutrition and its types. Firstly, we are going to discuss about nutrition. What do we mean by nutrition? Nutrition is a biochemical and physiological process by which organisms consume and utilize food to support life, growth and maintenance. न्यूट्रिशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स दोनों इन्वॉल्व हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूज करता है, एक किसी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है और उससे जो भी एनर्जी मिलती है उससे वो क्या करता है, हमारे पास उसकी लाइफ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ में और मेंटेनेंस में हेल्प मिलती है. तो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मूड कि हाउ ऑर्गेनिज्म obtain their food. Tropic nutrition as well as heterotropic nutrition. Firstly, we are going to discuss about the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या है? As the name suggests, auto means cell. Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organism क्या करते हैं? Organism prepare their food on their own. Organism prepare their food on their own by using the inorganic substances like water, carbon dioxide. So we are familiar with the term inorganic. Inorganic means compounds which have which does not contain oxygen, which does not contain carbon and hydrogen only. Carbon with its compounds like CO2, H2O. Okay? Not only carbon hydrogen compounds. Then we are going to discuss about the autotrophic nutrition types. Autotrophic nutrition are of two types: photoautotropic, chemoautotropic. Photoautotropic suggests the word photo means sunlight. So these are those organisms which use sunlight as a source of energy and prepare their food by the process known as photosynthesis. We are familiar with the term photosynthesis. Photosynthesis means process of preparing the food in plants. This phototropic nutrition mainly occurs in green plants and alga. Okay. When we are further going out, that is chemoautotropic. Chemoautotropic nutrition क्या है? Chemo means chemical. Organism which use chemicals and for by the oxidation of inorganic compounds prepare their food. That is known as chemosynthesis. Examples are certain bacteria. Bacteria example में है blue green. Example में आप purple bacteria लिख सकते हो. Another bacteria. Then autotropic के alternative में आता है that is your heterotropic nutrition. What is heterotropic? Hetero means other. Heterotropic nutrition क्या होता है? Type of nutrition in which organism depends on other for their food. Depends on other for their food. Organism in this category cannot produce their own food, rely on others or dead organism for nourishment. It is further divided into following types. Firstly, we are going to discuss holozoic nutrition. What is holozoic? Holozoic nutrition होता है type of nutrition in which organism ingest solid organic matter, digest internally by using their internal organ, digest the food. Examples: humans, amoeba, animals. Saprophytic Saprophytic nutrition is another type of heterotropic nutrition in which organism source of food is dead and decaying matter by organism secreting enzymes externally on the food and break down the food and before absorption. Break down the food before absorption. Example: fungi and some bacteria. Then another is parasitic. Parasitic nutrition involves two organisms. First is host, second is parasite. Host Host is the type of organism in which parasite live or parasite depends on food for in their host. Organism dry nutrients by living on or inside a host organism often cause it harm. Sometimes parasites क्या करते हैं? होस्ट को हार्म भी करते हैं, किल नहीं करते हैं. एक पॉइंट आपने याद रखना है. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? वो टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट और होस्ट. होस्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसपे पैरासाइट रहता है और जिससे पैरासाइट अपनी न्यूट्रिशन लेता है. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट को हार्म पहुंचाता है और होस्ट के अंदर रहकर ही उससे क्या करता है? अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है. कॉमन एग्जांपल आपकी क्या आ जाती है? टिक्स आ जाती है, टिप वॉर्म्स आ जाती है और कसकट्टा प्लांट्स. प्लांट में भी एक प्लांट है दैट इज अमरबेल भी कहते हैं इसे, जो कि क्या करता है? जो बड़े बड़े प्लांट्स है उन पे रहकर उन्हीं से उनका न्यूट्रिशन क्या करता है? लेता है. तो यहाँ पर ओवरव्यू हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स क्या है न्यूट्रिशन के वो. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन. की न्यूट्रिशन होती किस तरीके से? की स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोसेस कि न्यूट्रिशन कैसे होती है. मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन की इंटरनली न्यूट्रिशन कैसे होती है.
फर्स्ट है दैट इज टर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या मतलब है? टेकिंग इन फूड, फूड को क्या करना, अपनी बॉडी के अंदर लेना। सेकंड इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जब फूड लेता है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। लेकिन हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फूड को अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो क्या करता है? डाइजेशन प्रोसेस, वो प्रोसेस है इसमें पूरा एक फुल वीडियो लेक्चर आएगा आपके फर्दर। ये डाइजेशन क्या होता है अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। जब हम एक कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ड्यूरिंग डाइजेशन जो भी फूड आपका सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ऑब्जॉर्प्शन में वो क्या होगा? वो सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हुए हैं वो क्या करेंगे? सेल्स यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम प्रोसेस एसिमिलेशन, पूरे में आपकी रेस्पिरेशन आ सकती है, पूरा प्रोसेस आएगा, वो भी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपको। एसिमिलेशन में आप क्या करते हो? वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करते हो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए। और रिजेक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या करते हो आप? जो भी सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी यूज करती है। जो लेफ्ट आउट मटेरियल बच जाता है, जो कि वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो ये हमारी क्या थी? कुछ की स्टेजेस थी आपकी, दैट इज ऑफ योर न्यूट्रिशन की स्टेजेस थी कि आपकी न्यूट्रिशन किस तरीके से। टॉपिक में बोलो तो एक न्यूट्रिशन के क्या ये क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कैसे कैसे, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे टाइप की न्यूट्रिशन होती है, जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन में वो क्या कंपोनेंट्स लेते हैं, क्या चीजें न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स हमने मिनी दो क्लासेस में क्लासिफाई किए हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या होता है आपका? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एज द टर्म सजेस्ट, मैक्रो मीन्स लार्ज, और माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। तो न्यूट्रिएंट तो आपके क्या आ गए? एनर्जी सोर्सेज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जो आपको क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और ये हमें किस में चाहिए होते हैं? लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें मेनली आपके कंपोनेंट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है? हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है। इसमें आपके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं? ग्रेन और फ्रूट्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे पास हमारी बॉडी में मसल मास को बढ़ाते हैं। तो ये इसेंशियल होते हैं बिल्डिंग और रिपेयरिंग टिश्यू के लिए, जैसे कि आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं मीट, लेग्यूम्स, ठीक है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। फैट्स, फैट्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग टाइम, ये भी एनर्जी सोर्स होते हैं, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल फैट्स में आपकी क्या आ जाती है? घी, ऑयल, नट्स वगैरह एग्जांपल आ जाती है। वाटर, देखो वाटर आपका ना बहुत एक इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। इसेंशियल कंपोनेंट इस तरीके से क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें वाटर का एक अपना क्या है? रोल है। तो वाटर हमारे पास क्या है? एक तो हमारी बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, हमारे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हमारी बॉडी में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब हमारी बॉडी का एक आपका कह सकते हो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वाटर करता है। माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल। ये वो कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट इसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि ये हमारे पास क्या होंगे, ये अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का काम होगा। दे आर स्मॉल बट रिक्वायर, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करते हैं और हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपका पूरा इम्यूनिटी का सिस्टम जो है इन पे डिपेंड होता है। अगर हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या होते हैं? डिजीज से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो कैटेगरीज है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इनकी कुछ और फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको चाहिए होगी विटामिन तो मैं पूरा वीडियो लेक्चर इनके लिए भी स्पेशली बनाऊंगी। फिर मिनरल्स, मिनरल्स में आपके कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। हमें पता ही है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, पूरा बोन्स वगैरह में कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट है। आयरन, आयरन तो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम करता है। सोडियम और पोटेशियम तो आपको पता है हमारे सॉल्ट बैलेंस कंटेन करने में, मेंटेन करने में कितनी करता है। ओके, बाय दिस हमारा जो ये वीडियो लेक्चर, ये जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये मैंने आपको जर्नल ओवरव्यू दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे
ट्रैक करेंगे आपकी नॉलेज की, आपने कितना इससे लर्न करा, कितना आपने इससे सीखा। तो मैं आपको क्वेश्चंस रीड आउट करूंगी, देन उसके बाद हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आपने भी अपने आंसर्स वगैरह क्या करने हैं, मैंने यहाँ पे आंसर्स मेंशन नहीं करे हैं, तो आप क्या करोगे, आंसर्स वगैरह को साथ में लिखोगे, मतलब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आंसर्स वगैरह, और आपने उसको स्कोर करना कि आपने कितने मार्क्स इसमें आए। ठीक है। पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक। देखो, इन सब में से जो और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट, और ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ, जो खुद से खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। फंजाई, हमने पढ़ा फंजाई तो क्या करता है, हमारे पास डेड एंड डिकेइंग मैटर में आ जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, देन फूड अब्सॉर्ब करता है। ये तो होगा ही ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं आपके, दैट इज लाइट का यूज करते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके पास, लाइट को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमन बींग्स तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप है, और टेप फॉर्म आपका क्या आ जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप आ जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, दैट इज ऑफ योर ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद है न्यूट्रिशन, सेकंड क्वेश्चन। आप फर्दर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है न्यूट्रिशन, in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing, it is called, क्या कहते हैं इसे, देखो, ये वो काइंड की न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पर रहकर बिना उसे मारे उससे क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। अगर देखो यहाँ पे टर्म विदाउट किलिंग ना होता तो आपको आंसर कुछ और होता है, अब यहाँ पर है विदाउट किलिंग, तो आपके आंसर में आपको सोचना। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो होती है जिसमें ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेता है, लेकिन वो डेड एंड डिकेइंग से लेता है, एंजाइम्स रिलीज करके। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम इंजेस्ट करते हैं फूड, खाते हैं उसको, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं रहते हैं, डिपेंड करते हैं बट उसके ऊपर नहीं रहते हैं। पैरासिटिक, हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें मैंने आपको बताया था, जो होस्ट होता है, होस्ट की बॉडी पे पैरासाइट रहता है और उसी को क्या करता है, हार्म करता है, लेकिन किल नहीं करता है उसको, उस टाइम पर उससे एनर्जी लेता जाता है, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑफ योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन फर्दर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is considered a micronutrient required by the body। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे माइक्रो मीन्स कम। तो ये कौन से, इन सब में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी में। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके किसके टाइप्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के। तो ये तो होंगे नहीं। मैक्रोन्यूट्रिएंट के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट पार्ट है। तो एक ही आंसर बचता है, दैट इज ऑफ योर मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स इज अ काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर another further question, that is which one of the following organism exhibits saprotropic nutrition। तो सबसे पहले हमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर इंजाइम्स रिलीज करता है एक्सटर्नली, और उसे क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है फूड को, अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल है मशरूम, अमीबा, कस्कत्ता और साइनोबैक्टीरिया। और मशरूम का एक टाइप है फंजाई का। हमने पढ़ा था कि फंजाई क्या करते हैं, शो करते हैं आपके सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आपके आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ योर मशरूम। अनदर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। देखो क्या है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स भी शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स बताए थे। फर्स्टली क्या होता है, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो यहाँ पे अगर हम वो सीक्वेंस देखते हैं तो यहाँ पर पहले में डाइजेशन है, ये तो होगा नहीं। इंजेशन इसमें भी है, इसमें भी इंजेशन है, तो हाँ ये हो सकता है। और डी में एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं पहले। इंजेशन के बाद डाइजेशन तो सही है, फिर एब्जॉर्प्शन सही है, फिर एसिमिलेशन सही है, और इजेशन सही है। सेकंड वाले में इंजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन तब तक कैसे होगा जब तक डाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड देन आपका क्या हो जाएगा, इजेशन। तो आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर फर्दर क्वेश्चन आपका, which macronutrient is the primary source of immediate energy of the body cell। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी। तो इमीडिएट एनर्जी का क्या मतलब होता है, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको भी बताया कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है,
आपके क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रोटीन मैक्रो है, लेकिन ये आपका बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। विटामिन वाटर भी मैक्रो है, लेकिन ये आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन आपके क्या करते हैं? इम्यूनिटी वगैरह, और ये माइक्रो है। ठीक है। क्या फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है, organism that synthesize organic food using energy derived from chemical reactions। एनर्जी कहाँ से लेते हैं? केमिकल रिएक्शन से। कैसे? ऑक्सीडेशन कराते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सबस्टांसेस की। तो इसमें इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस की से लेते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसमें होगा? सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी कौन सा होना चाहिए? जिसमें केमिकल यूज होता है। फोटो में तो लाइट यूज होता है, ये तो होगा नहीं। कीमोट्रोपिक, कीमो, the word suggests chemo means chemical, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। फर्दर क्वेश्चन है, विच विटामिन इज फैट soluble एंड essential फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यहाँ पे दो वर्ड्स ध्यान देने वाले हैं। फैट soluble बोला है, तो अभी हमने विटामिन तो पढ़े, विटामिन ए बी सी डी और ई पढ़ा हमने, और के पढ़ा। तो इसमें से मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो विटामिन आपको ऐसे याद रखना है, WBC, W फॉर वाटर। तो वाटर सॉल्युबल दो विटामिन होते हैं, दैट इज बी एंड सी। उसके अलावा जितने भी है सारे फैट सॉल्युबल है। ठीक है। फैट सॉल्युबल ही पूछा होता तो हमारा आंसर ए भी हो सकता था, के भी हो सकता था। ये दो तो कैंसिल हो गए, ए बी। ए और के में से आपका विटामिन के होगा कि विटामिन ए होगा? अब उसका फंक्शन देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, तो हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, दैट इज विटामिन के। ओके, तो विटामिन के आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसमें। Further question है, moving on to next question, that is question number 9. In the parasitic relationship, the organism that provide the food and shelter is called as parasitic relationship। क्या होता है? parasitic मतलब जिसमें parasite क्या करता है? हमारे पास किसी बॉडी पर रहता है, किसी की बॉडी पर रहता है, जहां से वो फूड भी लेता है और वहीं पर रहता है, खाना भी लेता है और रहता भी है। तो ऐसे उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट कहते हैं, प्रेडेटर कहते हैं, कमेंसल कहते हैं, सिम्बियोट कहते हैं। तो यहाँ पर जो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। जो बाकी की जो ये टर्म्स हैं, ये आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड है। जब हम इस पर लेक्चर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको भी समझेंगे। ठीक है। फिर है आपका, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? तो अभी हम इसका ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक की फंडामेंटल डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या दिया है? पहला बोल रहा है ऑटोट्रॉपिक टेक्स इन ऑर्गेनिक मैटर, और हिटरोट्रॉपिक्स जो है इनऑर्गेनिक, तो टेक्स इन इनऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिक मैटर और हिटरोट्रॉपिक इनऑर्गेनिक मैटर। ये तो अपोजिट हो गया। ऑटोट्रॉपिक्स इनऑर्गेनिक मैटर्स को लेते हैं और हिटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत, ये तो है ही नहीं हमारा आंसर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं हमारे पास? ऑटोट्रॉप्स आपका ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स टेक देयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। वेयरएज हिटरोट्रॉपिक्स डिपेंड करते हैं अदर। जी, ये भी हमारा क्या है? ठीक है। ओके, चलो फर्दर ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक और ऑलवेज एनिमल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हिटरोट्रॉपिक और ऑलवेज प्लांट्स, ये भी बिल्कुल गलत। तो थर्ड तो कोई नहीं है। हिटरोट्रॉप्स यूज फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉप्स यूज फोटोसिंथेसिस, तो ये तो गलत। वाइल ऑटोट्रॉप्स यूज रेस्पिरेशन, ये तो नहीं आएगा इसका आंसर। तो सही आंसर इसका क्या बन रहा है? दैट इज ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, वेयर एज, जबकि हमारे पास क्या होते हैं? हिटरोट्रॉप्स डिपेंड करते हैं others। ओके, ये here is your 10 questions. Comment down your score in the comment boxes and see how many you will get the correct answers. एट एंड आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ये मेरी आपके लिए फर्स्ट वीडियो थी। फर्दर हम आएंगे इसके साथ और भी सारी वीडियोस लाएंगे, जितने भी बायो से रिलेटेड होंगी। और भी आपको अगर किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट पर बोलते चलना। मैं पूरा एक लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय बाय।